Hello, students. My name is Navdeep, your social studies teacher. We are doing chapter number 1 of Social and Political Life of class 7. Today, we will continue this chapter. We will do remaining topics of chapter number 1. The remaining topics are that we will discuss today: equality in Indian democracy, schemes issued by government to reduce inequality, the detail of midday meal scheme launched by government, issues of equality in other democracies. These are the remaining topics of chapter number 1. The name of the chapter number 1 is equality. Firstly, I will tell you how to annotate a text. Whenever you will read any text from your book, you should annotate your text. What is the meaning of annotate and how you will annotate your text? I will explain you in this slide. See, there are some words which are unknown to you that you will read from textbook. Circle that unknown words in the paragraph. Now, there are some keywords in your text. Underline that words. Then there are some parts that you don't understand. Make question mark on that parts. There are some parts to which you will connect your previous learning. Write C on that parts. Now you can skip E. This is not much more important. And after reading one paragraph, you will draw 2 slashes. Meaning of 2 slashes, stop here and summarize the whole paragraph in 1 or 2 sentences. When you will revise the chapter, you will read only this summary of paragraph that you will write after drawing 2 slashes. This is the way to annotate a text. Okay? From now, whenever you will read any chapter, any paragraph from your book, you will annotate the text while reading. How you will annotate? You will use circle for unknown words. You will use underline for keywords. You will use question mark for that parts which you don't understand. Use C for that parts to which you can connect your previous learning. And you can draw 2 slashes to summarize the paragraph in 1 or 2 sentences. Okay. Now we will start reading इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो उसको हम अभी पढ़ेंगे. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हर पर्सन को इक्वल मानता है. इसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल कंट्री में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, किसी भी ट्राइब से बिलोंग करता है, किसी भी एजुकेशनल स्टेटस से या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से वो बिलोंग करता है, उन सबको इक्वल माना जाएगा. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है. पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी है ही नहीं है. सीज मतलब ख़त्म हो गई है इनइक्वालिटी. ऐसा नहीं है. डेमोक्रेटिक इंडिया में जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है सभी पर्सन्स के लिए, वो रिकॉग्नाइज किया जाता है. माना जाता है कि इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए. While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment, इन्होंने बोला है कि पहले कोई ऐसी लॉ नहीं थी जो डिस्क्रिमिनेशन या किसी के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है तो उससे लोगों को प्रोटेक्ट कर सके. लेकिन आजकल ऐसी बहुत सारी लॉज बनाई जा चुकी हैं जो काम करती हैं किसके लिए, ताकि लोगों को डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उनको ट्रीट किया जा सके और उनको इक्वल ट्रीट किया जा सके. इसके लिए आज के टाइम में बहुत सारी लॉज बनाई जा चुकी हैं.
इक्वालिटी को लाने के लिए कुछ प्रोविज़न्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। 4 प्रोविज़न्स हैं मेन इसके लिए। जो फर्स्ट है वो कहता है कि हर पर्सन कानून की नज़रों में बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? हर पर्सन का मतलब है, एवरी पर्सन का मतलब है एक कंट्री के प्रेसिडेंट से लेके कांता जैसी जो डोमेस्टिक वर्कर है, कांता वाली स्टोरी बताई थी ना, उस तक के लिए सभी जो कानून है वो बराबर हैं। सेकंड प्रोविज़न कहता है कि किसी के भी साथ उसके रंग के बेस पे, रिलीजन, कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, या वो मेल है फीमेल है, किसी भी बेस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। थर्ड प्रोविज़न कहता है कि हर पर्सन की एक्सेस होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए सभी पब्लिक प्लेसेस तक, चाहे वो किसी तरह का कोई प्ले ग्राउंड है, चाहे होटल है, चाहे शॉप है, चाहे मार्केट है, कोई भी प्लेस है, यहाँ तक हर पर्सन की पहुँच होनी चाहिए। ठीक है। और फोर्थ कहता है प्रोविज़न कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, बैन होनी चाहिए अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत वाला पहले कंसेप्ट होता था ना पुराने टाइम में, कि जो छोटी कास्ट के लोग हैं ना वो अपर कास्ट वाले लोगों को टच नहीं कर सकते थे। अगर कर देते थे तो जो अपर कास्ट वाले लोग थे वो नहाते होते थे दोबारा से, वो बोलते थे कि हम गंदे हो गए हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, अब अबॉलिश कर दिया गया इसको। तो किन 4 प्रोविज़न्स की बात की गई? एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। सेकंड प्रोविज़न क्या है? नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। थर्ड है एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। एंड फोर्थ है अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। नाउ आई विल टेल यू टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। Here are 3 टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़। 3 तरह से लोगों के साथ इनइक्वालिटी की जा सकती है, लोगों को बराबर नहीं समझा जा सकता 3 बेसिस पर। फर्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी, सेकंड है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और थर्ड है सोशल इनइक्वालिटी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज 3 वन बाय वन। फर्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी क्या होती है? यहाँ पे देखो, आपको पिक्चर को देख के ही समझ आएंगी तीनों तरह की इनइक्वालिटीज़। आप क्या देख रहे हो? एक तरफ एक पर्सन है, उसके पास घर है, अच्छा गाड़ी है, पैसा है, गोल्ड है, सब कुछ है। और दूसरी तरफ कुछ है, एक पर्सन है कि उसके पास एक सिर्फ पोटली है, उसमें उसके पास थोड़ा बहुत सामान है, ना उसके पास घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, कुछ भी नहीं है। तो जब किसी के पास इतना ज़्यादा कुछ है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मतलब पैसे के बेस पर अगर हम देखें कि कोई इक्वल है या अनइक्वल है, तो उसको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोला जाएगा। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल का साइन है ना, देखो कि जो मेल है वो कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ एजुकेशन ऐसी होती है जो सिर्फ मेल्स को ही दी जाती है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स है ना, अपने इंडिया में आपने कोई लेडी सिक्योरिटी गार्ड देखी है? सिर्फ मेल्स ही होते हैं। ऐसे ही कुछ काम होते हैं जो सिर्फ मेल पर्सन को ही सौंपे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोनों में इनइक्वालिटी है। लास्ट इज सोशल इनइक्वालिटी। सोसाइटी में रिलीजन के बेस पर या कास्ट वगैरह के बेस पर या रेस के बेस पर, रंग के बेस पर जो इनइक्वालिटी होती है, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, उसे सोशल इनइक्वालिटी बोला जाता है। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए इंडिया में। वो क्या क्या हैं? बहुत सारे उसने एक्ट्स बनाए हैं, स्कीम्स चलाई हैं, पॉलिसीज़ लेके आई है गवर्नमेंट, प्रोग्राम्स चलाए हैं उसने बहुत सारे। कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं गवर्नमेंट ने? अटल पेंशन योजना, अमृत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रुपे, स्किल इंडिया, एंड मिड डे मील स्कीम, उड़ान, ये सारी उसने चलाई हैं। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाए हैं। तो जो मिड डे मील स्कीम है ना, इसको मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करती हूँ सारा। जो मिड डे मील स्कीम है ये 2001 में लॉन्च की गई थी। एंड जो मिड डे मील स्कीम है इसका मतलब क्या है, होता क्या था इसमें, अभी भी है ये, इसके थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, जैसे प्राइमरी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, गवर्नमेंट के अंडर जो स्कूल आते हैं उनमें बच्चों को खाना प्रोवाइड करवाया जाता है स्कूल में ही। अब इसकी वजह से फिर क्या होता है
खाने के लालच में बच्चों का एडमिशन ज़्यादा होता है जिनको घर पे खाने को नहीं मिलता, और गवर्नमेंट स्कूल में कौन सा फ़ीस वगैरह इनकी लगती है, तो एनरोलमेंट इंक्रीज़ होता है इससे, और बच्चे लीव पर भी नहीं रहते हैं, अटेंडेंस लेवल भी उनका स्कूल्स में इंक्रीज़ होता है, उनका क्लासरूम में कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब वो खाना खाकर अच्छे से उनका पेट भरा होगा, वो सेटिस्फाइड होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। अगर भूखे पेट उनको पढ़ने के लिए हम बिठाते रहें तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, उनका कंसंट्रेशन लेवल ब्रेक होगा। और कास्ट इनइक्वालिटी को भी इससे प्रमोट किया जाता है मिड डे मील स्कीम के थ्रू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी अलग अलग कास्ट के लोग बैठ के, चाहे कोई किसी भी रंग का है, किसी भी रिलीजन का है, सभी मिलके यहाँ पर लंच करते हैं। यहाँ पे देखो आपको ग्राफ दिया गया, आप देख सकते हो 2011 से 12 में सबसे हाई है एनरोलमेंट स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। ये क्यों बढ़ा? मिड डे मील स्कीम के कारण ही बढ़ा। ये जो मिड डे मील स्कीम है ये 12 करोड़ चिल्ड्रन को अपनी सर्विसेज दे रही है ये स्कीम, ठीक है। एंड ऑल ओवर द कंट्री जो स्कूल्स हैं उनमें से ये 12,65,000 स्कूल्स को मिड डे मील के थ्रू भोजन पहुंचाया जा रहा है। अब आपके सामने कुछ टेक्स्ट है, इसको रीड करते हैं। One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly। अब यहाँ पे बोला है कि एक रीज़न मेन ये भी है कि लोग अभी भी इनइक्वालिटी अपनी कंट्री में वो ये है कि लोगों का एटीट्यूड बहुत स्लोली चेंज होता है। लोगों को ये पता भी है कि डिस्क्रिमिनेशन करना, किसी के साथ भेदभाव करना लॉ के अगेंस्ट है, कानून के अगेंस्ट है, फिर भी वो कंटिन्यूसली लोगों को अनइक्वल ट्रीट करते हैं। किसके बेस पे? उनकी कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, डिसेबिलिटी के बेस पे और इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे। अगर हम लोग ये बिलीव करने लग जाएं, ये मानने लग जाएं कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, सभी पर्सन इक्वल है और हर पर्सन डिग्निटी को डिज़र्व करता है, डिग्निटी के साथ ट्रीट होना, अगर हमारा ये एटीट्यूड चेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली ही हमारी कंट्री में इक्वालिटी आ जाएगी। हमारी कंट्री में इक्वालिटी क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा रहता है कि ये पर्सन इन्फीरियर है और ये अच्छा है, ये अपर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है। हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, और लोगों का ये जो एटीट्यूड है ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इसीलिए इनइक्वालिटी अभी तक पूरी तरह से हमारी कंट्री से नहीं गई है। अभी यहाँ पे हमने अपनी कंट्री की सिर्फ बात की। अगर हम अदर डेमोक्रेसीज़ में भी जो इक्वालिटी वाला इशू है उसको देखें, हमें सिर्फ ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में इनइक्वालिटी है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अमेरिका में देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और वहाँ पर भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। ये हम कैसे कह सकते हैं? वहाँ पर जो अफ्रीकन अमेरिकन्स रहते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स उनको बोलते हैं जो बाय ओरिजिन अमेरिकन नहीं है, जो अफ्रीका से आए थे। इनके जो एंसेस्टर्स हैं ना, ये अफ्रीका से अमेरिका में आए थे और अमेरिका में वो एज स्लेव्स, गुलाम के रूप में काम करते थे। फिर आगे उनकी जनरेशन अमेरिका में ही पैदा हुई, तो उनके जो जनरेशन्स हैं उनको अफ्रीकन अमेरिकन बोला जाता है। इनका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, और जो अमेरिकन्स होते हैं जिनका ओरिजिन ही अमेरिका है, उनका जो कम्प्लेक्शन है वो फेयर होता है, बहुत ज़्यादा वाइट होता है, उनको वाइट बोलते हैं। तो जो वाइट पीपल है ना, ये ब्लैक्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर कलर, स्किन कलर। कैसा इनके साथ ट्रीट किया जाता था इनको? जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, अगर ये स्कूल्स में जाते थे तो सबसे पीछे बैठना पड़ता था इनको, और इनके लिए सेपरेट स्कूल्स होते थे। अगर ये बस में सफ़र करते थे तो वहाँ पर ये सबसे पीछे सीट पर बैठते थे, और अगर कई बार जो वाइट्स होते थे उनको कहीं सीट नहीं मिलती थी तो वो ब्लैक्स को उठा देते थे और ख़ुद वहाँ पर बैठ जाते थे। अब यहाँ पे रोसा पार्क्स की अगर बात करें, ये अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन थी। इसने क्या किया, ये पूरे दिन से थकी हुई थी और ये बस में सफ़र कर रही थी। इसने एक वाइट मैन ने इसको खड़े होने के लिए बोला, तो इसने खड़े होने से मना कर दिया। ये बात है 1 दिसंबर 1955 की।
तो उसके रेफ्यूज़ल की वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा एजिटेशन हो गया, विद्रोह हो गया। जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे इन्होंने अपने राइट्स की डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि हमें भी वाइट्स के बराबर राइट्स चाहिए। तो इन्होंने जो एजिटेशन किया था अफ्रीकन अमेरिकन्स ने कि हमें भी इक्वल राइट मिले, उसी एजिटेशन को सिविल राइट्स मूवमेंट का नाम दिया गया। ठीक है, तो आपको पता लग गया सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है। जब अफ्रीकन अमेरिकन्स ने उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ एजिटेशन किया, आवाज़ उठाई, तो उस एजिटेशन को सिविल राइट्स मूवमेंट का नाम दिया गया। ये जो सिविल राइट्स एक्ट है ये 1964 में आया था, इसके अंडर ये वाली मूवमेंट चलाई गई थी। और ये एक्ट क्या कहता है, किसी भी पर्सन के साथ रेस, रिलीजन, स्किन कलर वगैरह, नेशनल ओरिजिन के बेस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये वाली जो इन्होंने मूवमेंट चलाई सिविल राइट्स मूवमेंट, इसका ये अच्छा रिजल्ट देखने को मिला कि अब जो अफ्रीकन अमेरिकन थे इनको अब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता था कि अगर कोई किसी वाइट मैन या वुमेन ने इनको खड़े होने के लिए कहा तो इनको अपनी सीट देनी पड़ेगी। अब ये उनके बराबर राइट्स डिज़र्व कर सकते थे। ठीक है, कुछ लेवल तक, कुछ एक्सटेंट तक इनको इक्वालिटी मिल गई थी, इनकी जो हालत है कुछ सुधर गई थी। पर फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही उनके बराबर हो गए थे, क्योंकि जो ब्लैक्स थे ये अभी भी पुअर थे इन कंपैरिजन टू वाइट्स। ये उतनी फैसिलिटीज़ नहीं अफोर्ड कर पाते थे जितनी कि वाइट्स कर पाते थे। ये जो वाइट्स थे वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे और ये जो ब्लैक्स थे अफ्रीकन अमेरिकन्स ये गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना ही सिर्फ अफोर्ड कर पाते थे, प्राइवेट में नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी इनइक्वालिटी रह गई थी। अभी आपको जो मैंने रीडिंग करवाई है, जो आपने मेरे साथ रीड किया, इसी के बेस पर आपसे मैं 3 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आपने मुझे इनका आंसर देना है। एक क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी डिड यू रेड अबाउट? आपने किस तरह की इनइक्वालिटी के बारे में रीड किया? हमने कौन सी इनइक्वालिटी के बारे में अभी रीड किया है? अबाउट स्किन कलर, या ऑन द बेसिस ऑफ कलर बोल सकते हो। वट वाज द सिविल राइट्स मूवमेंट? सिविल राइट्स मूवमेंट क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स ने एजिटेशन किया था उनके खिलाफ, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट। थर्ड है, आर अफ्रीकन अमेरिकन ट्रीटेड इक्वली टुडे? आज के टाइम में वो इक्वल ट्रीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। उसके लिए हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं कि अभी भी वो कुछ फैसिलिटीज़ से वंचित रह जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये पुअर है इन कंपैरिजन टू अमेरिकन्स। ये अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं और वाइट्स प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। हियर आर आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। This is enough for today, and your homework for today is do question number 2, 4 and 5 from NCERT book, and do practice question 3.1 and 3.2 from part 1 lead book. Okay, you have to write practice question 3.1 on Fear Not book and 3.2 in lead part 1 book, and you have to write question number 2, 4, 5 on Fear Not book of NCERT. Okay, enough for today. Thank you.